Good morning, everybody. I would like to welcome you in this lecture of engineering graphics and CAD. And we are concentrating on the orthographic projection. Actually, in the graphics, to represent any object, there are four types of the projection. First one is the orthographic projection. Second one is the oblique projection. Third one is the perspective projection. And fourth one is the isometric projection. So out of these four types of the projection, I want to fetch your concentration towards this first type, which is nothing but orthographic projection, and second type, isometric projection. In orthographic projection, we are converting three-dimensional object into 2D view, means two-dimensional object. And in isometric projection, we are drawing three-dimensional view with the help of two-dimensional view. So isometric and orthographic projection are totally reverse concept to each other. एक दूसरे को ये जो concept है ये totally reverse concept है. Orthographic projection में हम जो 3D ऑब्जेक्ट दिया हुआ है उसे टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में ड्रॉ करते हैं. और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में हम टू डायमेंशनल व्यू से उसका कन्वर्जन 3D में करते हैं. ये जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू आपको ध्यान में रखना चाहिए. हमारे सिलेबस में सिर्फ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ही है, बट आई एम गिविंग यू एक्स्ट्रा information about isometric projection because in future if anybody will ask you about the engineering graphics, what is the difference between orthographic projection and isometric projection, then you should be in a position to tell it. What is the difference? In orthographic projection, we are converting 3D view of any object into 2D picture, and in isometric projection 2D view we are converting into 3D object. Okay, now how to start with it, how to draw this? There is a first fundamental technique is there, and I want to discuss this fundamental technique with you. The first thing is, whatever work we are going to do as far as orthographic projection is going to be concerned, that work is in फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड. ये जो वर्क है इस वर्क में हमें फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड जो है वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड अप्लाई करना है. तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में एक बात आप सबको ध्यान में रखनी है, और वो बात ये है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में हमेशा फ्रंट व्यू XY लाइन के ऊपर आता है और टॉप व्यू XY लाइन के नीचे आता है. ओके, एंड इन एडिशन टू दैट व्हाट इज द सीन विद द लेफ्ट हैंड साइड व्यू एंड राइट हैंड साइड व्यू, दैट वी आर गोइंग टू सी इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर. लेट अस स्टार्ट विथ मी. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ड्रॉ अ क्यूब ओवर हियर.
cube, instead of cube we can say that it is one kind of the prism, not cube. I'll draw it here. You will also have to draw at the corner of your page. Somewhere you need to draw it. In this way. And I will provide you the dimensions. This dimension is 20 mm. Its height is 40 mm. And its width is 50 mm. Now, this is a three-dimensional object. It is a prism, okay, rectangular prism. Have you drawn it? You will have to draw with the freehand sketch. Don't use scale and etc. At the corner of your page, you will have to draw this. Have you drawn it? Yes, sir. Okay. Whenever, जब भी कोई ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ होगा, whenever the object is given to you, they will give you the direction of observer also. Direction of observer means कि किस डायरेक्शन से ऑब्जर्वर इस डायग्राम को देख रहा है. तो मैंने पहले आपको यह डायरेक्शन दे दी, जिस डायरेक्शन को मैं नाम दूंगा एक्स डायरेक्शन. So you are observing to this particular diagram from the x direction. तो जब मैं x डायरेक्शन से इस ऑब्जेक्ट को देखता हूं तो दो व्यू कंपल्सरीली यहां आ जाते हैं. फर्स्ट व्यू इज फ्रंट व्यू, and second view is the top view. तो ये जो दो व्यू हैं, वो दो व्यू इस ऑब्जेक्ट के हमें ड्रॉ करने ही हैं, लेकिन इसके साथ और एक व्यू मुझे ड्रॉ करना है और वो है साइड व्यू. लेकिन कौन सा साइड व्यू यहां आता है, ये बात भी सोचने की बात है. जब मैं एक्स डायरेक्शन से देखता हूं, थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि आप भी एक्स डायरेक्शन में आके इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो मुझे बताइए ये जो 50 वाली साइड है, वो 50 वाली साइड आपके लेफ्ट हैंड में आती है या राइट हैंड में आती है? लेफ्ट हैंड में. लेफ्ट हैंड में आती है. तो वो जो व्यू होगा, वो व्यू होगा लेफ्ट हैंड साइड व्यू. वो व्यू क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड व्यू. यानी कि जब आप एक्स डायरेक्शन से देखते हो तो आपको फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है, दैट इज 20/40 का फ्रंट व्यू. ऊपर जाके आपको 20/50 का टॉप व्यू, और लेफ्ट हैंड में देखते हुए लेफ्ट हैंड साइड व्यू, ये आपको ड्रॉ करना है. लेकिन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड का एक इंपॉर्टेंस ये है कि इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड लेफ्ट हैंड साइड व्यू is observed, left hand side view is observed at right side of you. ये जो लेफ्ट हैंड साइड व्यू है, वो लेफ्ट हैंड साइड व्यू कहां आएगा? आपके राइट हैंड को आएगा, और राइट हैंड साइड व्यू जो है वो आपके लेफ्ट हैंड को आएगा. तो ये जो बात है, ये बात हमें हमेशा ध्यान में रखनी है, इसे भूलना नहीं है. ओके, तो यहां आप देख सकते हैं
कि मैंने आपको एक ऑब्जेक्ट दिया है, ये ऑब्जेक्ट 3D है और इस ऑब्जेक्ट का हमें ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना है। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाने के लिए पहले आपको दो एक्सिस ड्रॉ करने पड़ते हैं, दो प्लेन्स ड्रॉ करने पड़ते हैं। एक प्लेन है यहां जो वर्टिकल है, दूसरा है ये है जो हॉरिजॉन्टल है। तो इसको मैं नाम देता हूं एक्स वाई, और जो वर्टिकल है उसे नाम देता हूं मैं x1 y1। ओके, तो यहां एक बात आप सबको सोचनी है कि यहां मुझे तीन जो है वो व्यू ड्रॉ करने हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू है जो है वो यहां आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड व्यू राइट हैंड साइड को आ जाएगा। तो मुझे फ्रंट व्यू जो है वो यहां ड्रॉ करना है और टॉप व्यू जो है वो यहां ड्रॉ करना है। ये बात हमेशा आप याद में रखिए, ध्यान में रखिए कि लेफ्ट हैंड साइड व्यू जो है वो राइट हैंड में आएगा। ये बात एमसीक्यू में भी पूछी जा सकती है कि इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड लेफ्ट हैंड साइड व्यू इज कमिंग टू द राइट हैंड साइड और विच साइड of the student, of the person who is drawing that particular orthographic projection. Okay, तो ये बात आप पहले ध्यान में रख लीजिए कि कौन से तीन व्यू मुझे ड्रॉ करने हैं। उसके बाद आपको एक और काम करना है कि x1 y1 और xy के आजू बाजू में आपको सेम डिस्टेंस पे पैरेलल लाइंस बनानी है। वो जो डिस्टेंस होगा वो 10 या 15 mm होगा। यानी कि आप क्या कर सकते हैं, 15 mm पे एक फेंट लाइन ऐसे बना दीजिए यहां x1 y1 को पैरेलल। उसके बाद उसके लेफ्ट साइड में एक लाइन बना दीजिए 15 mm पे। सिमिलरली xy लाइन के ऊपर एक लाइन बना दीजिए, सेम डिस्टेंस जितना आपने यहां लिया है, ऊपर लिया है 15 लिया है, तो सब जगह आपको 15 ही रखना है। एवरीवेयर यू विल हैव टू कीप 15 mm डिस्टेंस ओनली। एंड एट द सेंटर you can find that here there will be 4 rectangles, 4 squares। यहां 4 स्क्वायर आ जाते हैं। Have you drawn it? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. तो आपको एक बात करनी है, यहां जहां आपको साइड व्यू ड्रॉ करना है उसके नीचे के क्वाड्रेंट में इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से एक 45 डिग्री की लाइन निकालनी है। जो साइड व्यू हम ड्रॉ कर रहे हैं उसके नीचे के व्यू में। Have you drawn it? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Now what I will do, I'll remove these names, front view, top view and side view. This was just for your understanding. Now I will have to draw it. So always keep in mind, in front view there are 2 dimensions. जो भी कुछ आपका फ्रंट व्यू होगा उस फ्रंट व्यू में 2 डायमेंशंस होते हैं। फ्रंट व्यू में कौन से डायमेंशंस होते हैं? फ्रंट व्यू में होती है लेंथ एंड हाइट। फ्रंट व्यू में हमेशा
लेंथ और हाइट होती है। ओके, तो मुझे बताइए लेंथ कितनी होगी। लेंथ यानी जिस डायरेक्शन से आप ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ओके, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स डायरेक्शन में कितना है? ऑब्जेक्ट को देखिए, एक्स डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है? 20. यस, तो फ्रंट व्यू में हमारा ब्लॉक इधर आएगा 20, just a minute, I'll remove it and I'll write once again. तो फ्रंट व्यू में लेंथ एंड हाइट आएगी, तो लेंथ होगी 20 और हाइट होगी 40। सिमिलरली टॉप व्यू, टॉप व्यू यानी क्या है? ये जो पार्ट है, ये जो रेक्टेंगल है, वो उसको आपको आपके डायरेक्शन में रोटेट करना है। ओके, और उसका टॉप व्यू बनाना है। तो टॉप व्यू में भी दो डायमेंशन आते हैं, एक आता है उसकी लेंथ और विड्थ। अब लेंथ कितनी है डायग्राम की? लेंथ कितनी है हमारे दिए हुए ब्लॉक की? 20। और उसकी जो विड्थ है वो विड्थ कितनी होनी चाहिए? ये देखिए विड्थ, विड्थ यानी दिस डायमेंशन, दिस इज लेंथ एंड दिस इज विड्थ। विड्थ कितनी है? 50, करेक्ट। और जो आपका लेफ्ट हैंड साइड व्यू है, इस लेफ्ट हैंड साइड व्यू में, लेफ्ट हैंड साइड व्यू यानी ये वाला व्यू, इसमें कौन से दो डायमेंशन आते हैं? देखिए, ये हाइट और ये विड्थ। हाइट कितनी है? Look towards diagram and tell me what is the height? Height, height, height. 40. Height means ऊंची. Okay. And width? 50. 50. Absolutely correct. Absolutely correct. यानी कि यहां मुझे फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू के जो तीन ब्लॉक्स हैं, इन तीन ब्लॉक्स का जो डायमेंशन है वो यहां मिल गया है। ओके, अब मैं क्या करूंगा, ये पहले फेंट लाइन से ड्रॉ करूंगा। तो यहां मैं स्टार्ट कहां से करता हूं, ये देखिए। पहले मैं स्टार्ट करूंगा इस कॉर्नर से फ्रंट व्यू का डिस्टेंस। तो मैं फ्रंट व्यू में उसकी जो लेंथ है वो 20 है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में इस डायरेक्शन में 20 मेजर करूंगा। इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में 20। ओके, आई विल मेजर द 20 and I'll mark a line in this way. तो पहला जो फ्रंट व्यू है, उस फ्रंट व्यू में मेरा ब्लॉक 20 बाय 40 का है, तो मैंने 20 यहां मार्क कर दिया। अब मैं
वर्टिकल डायरेक्शन में हाइट मार्क करूंगा। हाइट कितनी होनी चाहिए? 40। तो 40 mm में यहां क्या कर दूंगा? मार्क कर दूंगा, और वो साइड व्यू में भी ले जाऊंगा। So this dimension is 20, and the next dimension is 40। ओके, अब टॉप व्यू में आप देख लीजिए, ऑटोमेटिक उसकी जो लेंथ है वो लेंथ यहां आ गई है, बिकॉज वी हैव एक्सटेंडेड द प्रोजेक्टर इन द टॉप व्यू। तो टॉप व्यू में बस आपको 20 आपका यहां आ गया है। ये देखिए, ये 20 का डिस्टेंस ऑटोमेटिकली मार्क हो गया है। आपको बस उसकी विड्थ टॉप व्यू में मार्क करनी है यहां। तो विड्थ कितनी है? 50। So you need to mark the 50 mm over here. आपको क्या करना है? 50 mm यहां मार्क करने हैं। और ये जो 50 mm है वो आपको इस 45 डिग्री के लाइन तक लाना है उसे। ये जो हाइट है वो है 50, and then you will have to drag this line in upward direction, and when you will take it in upward direction, automatically लेफ्ट हैंड साइड व्यू में आप देख सकते हैं कि 40/50 का एक रेक्टेंगल जो आपके साइड व्यू का डायमेंशन है वो यहां खुद ब खुद बन जाता है। तो ये जो डायमेंशन होगा वो डायमेंशन होगा 50, और ये डायमेंशन होगा 40। तो पहले कोई भी डायग्राम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हो, आपको उसका ब्लॉक बनाना है। उसका क्या बनाना है? ऐसे 3 रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनाने हैं। उसकी टोटल हाइट, विड्थ और लेंथ आपके ध्यान में रखते हुए ये 3 जो है, ये 3 आपको यहां ब्लॉक्स बनाने हैं। बना लिए आपने ब्लॉक्स? यस सर। एवरीबॉडी? यस सर। ओके, अब मुझे बताइए कि जब आप इस डायग्राम को फ्रंट व्यू ड्रॉ करने के लिए एक्स डायरेक्शन में देखेंगे तो आपको ये सरफेस नजर आएगा, रेक्टेंगुलर सरफेस। एम आई करेक्ट? जो मैंने लाल लाइन से हैच किया है, ये सरफेस आपको नजर आएगा? यस सर। यस, ये सरफेस नजर आएगा, यानी कि इसके जो बॉर्डर के एजेस हैं वो पूरे के पूरे आपको विजिबल होंगे। यस। तो जो पार्ट यहां विजिबल है उतना पार्ट आपको ड्रॉ करना है, डार्क करना है। बाकी का सारा वर्क आपको फेंट रखना है। तो मैं ये जो ड्रॉ कर रहा हूं
Purposefully I am using color, but you will have to make it dark. मैं यहाँ कलर यूज कर रहा हूं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि इतना ही पार्ट इस व्यू में आपका डार्क आएगा. दिस इज व्हाट, दिस इज योर फ्रंट व्यू. अब टॉप व्यू ड्रॉ करने के लिए हमें क्या इमेजिन करना है, यह बात मैं आपको बताना चाहता हूं. आपको ऐसे इमेजिन करना है कि ये जो प्लेन है, ये प्लेन आपने उठा लिया है आपके डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, इन दिस वे. तो जब आप प्लेन आपके तरफ रोटेट करेंगे, ये रेक्टेंगुलर प्लेन, तो आपको एक वर्टिकल रेक्टेंगल यहां दिखाई देगा. ये जो वर्टिकल रेक्टेंगुलर प्लेन है वो उठाने के बाद आपको ऐसे एक वर्टिकल प्लेन यहां नजर आ जाएगा, इन दिस वे. बड़ा होगा डायमेंशन में. तो टॉप व्यू में मुझे क्या मिलता है, वर्टिकल रेक्टेंगल मिलता है. और टॉप व्यू में मुझे कौन सा सरफेस दिखता है, I want to indicate it with the green line in this way. ये जो पार्ट है ये आपको कहां दिखता है, टॉप व्यू में दिखता है. ओके, तो टॉप व्यू में मुझे क्या दिखेगा, वर्टिकल रेक्टेंगल दिखेगा. एंड आई विल ड्रॉ द टॉप व्यू, मीन्स इट्स डार्क विजिबल आउटलाइन एजेस इन दिस वे. और जब मैं इसका साइड व्यू ड्रॉ करूंगा तो साइड व्यू में मुझे ये बड़ा वाला रेक्टेंगल 50/40 का, इसके एजेस दिखेंगे. तो मैं क्या करूंगा, यहां वो जो एजेस हैं वो एजेस ड्रॉ कर दूंगा. मैं टॉप व्यू के नीचे लिख दूंगा टॉप व्यू, और साइड व्यू के नीचे लिख दूंगा LHSV. यहां मैं लिख दूंगा LHSV. तो देखिए मेरे 3 व्यूज तैयार हो गए, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड लेफ्ट हैंड साइड व्यू. ओके, तो ये 3 व्यूज मैंने यहां ड्रॉ कर दिए हैं इसके. एंड दिस इज योर फर्स्ट प्रॉब्लम. ये क्या है, हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है. ओके, दिस इज आवर फर्स्ट प्रॉब्लम, कि जहां हमने फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और लेफ्ट हैंड साइड व्यू ड्रॉ कर दिए हैं. और उसको डायमेंशन भी हमने यहां दे दिए हैं. तो पहली बात यह है कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में आपको पहले जो दी हुई डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और LHSV में लेंथ क्या है, हाइट क्या है और विड्थ क्या है, यह पहले लिखना पड़ता है. और उसके अनुसार आपको ब्लॉक्स बनाने पड़ते हैं. और ब्लॉक बनाने के बाद जो भी पार्ट विजिबल है उस पार्ट को हम डार्क कर देंगे और हमारे जो तीनों व्यूज हैं वो व्यूज कंप्लीट कर देंगे. तो यहां LHSV, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू हमें बनाना था क्योंकि हमने एक्स डायरेक्शन से डायग्राम को देखा था. ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम अनदर डायरेक्शन से डायग्राम को देखेंगे और उसका जो है वो हम ऑर्थोग्राफिक व्यू बना देंगे. हैव यू कंप्लीटेड दिस मच पार्ट? हैव यू ड्रॉन ऑल these 3 views in your notebook? Yes, sir. Yes, sir. Girls? Yes. Yes. Okay then.
So what I will do, I'll go outside of this class because only that 7-8 minutes are remain. So in 7-8 minutes, it is not possible to complete all the description. So what I will do, I will close the class. Okay. And then once again, you will have to join it and we will solve second problem of orthographic projection. Okay. Yes, sir. Yes.